Hello guys, how are you? I hope you are doing very well. So in last class we have completed the gaseous hypothesis given by the Kant, and today we are going to study the nebular hypothesis. The nebular hypothesis, and this nebular hypothesis is nothing but the modification of the hypothesis given by the Kant. So this is nothing but the modification of the modification of the gaseous hypothesis. Yes. So let's start with the nebular hypothesis. And if you अगर आपने अच्छे से समझा है गैसियस हाइपोथेसिस को जो कांत ने दिया था, यू विल फाइंड दिस नेबुलर हाइपोथेसिस इज वेरी इजी. Okay, the same concept applies but in a different manner. One important thing again here, that this nebular hypothesis also try to explain the earth formation of earth and our solar system. Still we are not going in the direction of the universe. हमने कल पढ़ा था कि जो इनिशियल थ्योरीज हैं वो सब किसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग में सोलर सिस्टम और अर्थ को. लेटर थ्योरीज जो आएंगी वो एक्सप्लेन करेंगी यूनिवर्स को. तो दिस नेबुलर हाइपोथेसिस आल्सो ट्राइज टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम. ओके, so let's start with the nebular hypothesis. Let's start करते हैं हम लोग शुरू. तो this nebular hypothesis, this was given by the Laplace. This was given by the Laplace in 1796. In 1796. This year it is not important, but yes, you must remember this name Laplace. कई बार प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं ना ये. तो लाप्लास ने कौन सा हाइपोथेसिस दिया था? नेबुलर हाइपोथेसिस. द गैसियस हाइपोथेसिस was given by the Kant. Now it is nothing but the modified version of the Kant's theory. जो कांत ने कौन सा हाइपोथेसिस दिया था हमने देखा था लास्ट क्लास में, it was gaseous hypothesis. तो it is nothing but the modification in the Kant hypothesis. तो basically हुआ क्या था? In last class we have studied there are several drawbacks, there were several limitations of the gaseous hypothesis which was given by the Kant. In this hypothesis, in the nebular hypothesis, Laplace ने क्या किया? he tried to वो जो limitation था उसको हटाने की कोशिश किया गया. ठीक है, तो वो जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी लिमिटेशंस थे, वो खत्म करने की यहाँ पे किसने कोशिश करी? लाप्लास ने कोशिश करी. नाउ कैसे वो कोशिश की कि भाई वो जो लिमिटेशंस हैं वो मिनिमाइज हो जाएं. तो to minimize the limitation, Laplace in the nebular hypothesis assumes several things. So he has taken several assumptions. Now, what was the first assumption? The first assumption was a huge and the hot gaseous nebula is present in the space. What Kant has said that only primordial matter was present at the starting point, but in the nebular hypothesis, what Laplace is saying that a hot nebula ये कब प्रेजेंट है? एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब यूनिवर्स स्टार्ट हो रहा है. एट द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स दिस हॉट नेबुला was present at that time. From the very beginning the nebula was rotating on its axis. हमने देखा था कि in the gaseous hypothesis that why this nebula was rotating on its axis due to the collision, and he was unable to explain this thing, that why collision is taking place. So Laplace assumed that this nebula was rotating. Again, the same thing. He was also unable to explain that why this nebula was rotating, but he assumed it कि भाई nebula क्या कर रहा है? घूम रहा है. Nebula was rotating on its axis. ठीक है. The next thing is nebula was losing heat from its outer surface due to the process of radiation. Now, what is happening? Just try to understand that this is nebula. This is the center of nebula and this is the outer periphery of the nebula. What he assumes that from the outer surface, due to the radiation, what is happening? Due to the radiation, the heat
the heat is getting loose. यहाँ से हीट बाहर निकल रही है, टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज होने की कोशिश कर रहा है. तो ये बात पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. नेबुला वाज लूजिंग हीट फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रेडिएशन. सो रेडिएशन is nothing but the process of, it is a process, किसका process है? It is a process of transferring the heat. heat को transfer करने का एक process है. Suppose this is a body, suppose this body is sun and this other body is earth. In between and sun and earth you will find space is present. That means no medium is present between the sun and the earth, but still you will find that the heat from the sun reaches to the earth. This process and this process where no medium is present but still heat is getting transferred, this is known as the radiation. Through similar process, the radiation, through the similar process, the heat is losing out from this nebula. From the nebula, and this is a rotating nebula. And earlier it was very hot also. So it was the assumption. Now see, heat is losing out from here. That means temperature is getting down here. Yes or no? भाई टेम्परेचर कम हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अच्छा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो व्हाट विल हैपन टू नेबुला? If the temperature is decreasing, what nebula is trying to do? Nebula start contracting. Suppose this is time t1. At t1, the outer periphery at this position, and if you will jump to time t2, what will happen? Due to loosening of heat, what will happen? Temperature start decreasing. The nebula start cooling down. और जब ये cool down होगा तो what will happen? It will start contracting. यहाँ पे क्या होना शुरू होगा? Contract होना शुरू हो जाएगा. After some time you will find at this point, this is t3 time, and again it start contracting. So you will find there are several rings are forming here. T1, T2, T3 and T4. Yes or no? So this is written as the size reduces, its velocity increases. And suppose if a body is rotating, example ले लेते हैं, आप बास्केटबॉल को घुमा रहे हो और उसी फोर्स से आपने क्या किया, बास्केटबॉल की जगह आप आपने टेनिस बॉल ले लिया. टेनिस बॉल की साइज छोटा है और उसी फोर्स से आप टेनिस बॉल को घुमा रहे हो, उसी फोर्स से आप क्या कर रहे हो? बास्केटबॉल को घुमा रहे हो. तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? टेनिस बॉल की स्पीड ज़्यादा होगी. क्योंकि साइज छोटी है. सिमिलरली जैसे जैसे रोटेटिंग डिस्क की साइज छोटी होती हुई चली जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? वहाँ पे बढ़ जाएगा. क्या हो जाएगा? स्पीड बढ़ जाएगा. दैट मीन्स अगर इसका स्पीड v1 रहा हो, इसका स्पीड अज्यूम कर लेते हैं, दिस स्पीड इज v1, दिस इज v2, दिस इज v3 एंड दिस इज v4. दैट मीन्स v4 सबसे ज़्यादा होगा, v3 उससे कम, v2 और कम, और v1 इसी तरीके से अरेंजमेंट होगा. तो स्पीड क्या हो रही है? धीमे धीमे बढ़ रही है. स्पीड इज इंक्रीजिंग. व्हाई? बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग इन द साइज. एज द साइज रिड्यूस, its velocity increases, and with the increased velocity the ring started detaching. तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा, ये जो रिंग्स यहाँ पे बनी, पहली रिंग बाहर हो जाएगा, सेकंड रिंग अलग, थर्ड रिंग अलग, फोर्थ रिंग अलग. जैसे जैसे रिंग अलग हो रहा है, आप देखोगे यू विल फाइंड several planets are forming here. ये P1 planet, ये P2, P3 and P4. So you will find planets are forming at the periphery, at the ring. And why? Due to the increase in the velocity. Yes or no? Now, what is happening here? From the gaseous mass, the rings are detaching here. Later, what is happening? The gaseous mass later cool down, and from the planets, क्या बना लिया इन्होंने?
प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कर लिया। एंड द रिमेनिंग पार्ट जो रिंग पे था वो तो क्या बन गया, प्लैनेट बन गया। अब रिंग के अलावा जो सेंटर पे जो मास रहा दैट विल कन्वर्ट इनटू स्टार विच इज नोन एज द सन। सो ये सेम कंसेप्ट है, बन क्या रहा है यहाँ पे भी नेबुला बन रहा है, लेकिन नेबुला की क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एंड ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन व्हाट इज हैपनिंग, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड ड्यू टू वेरी इंक्रीज इन वेलोसिटी व्हाट इज हैपनिंग, rings are getting separated one by one। एंड इस रिंग में क्या हो रहा है, अगेन द जो भी गैसियस मास था वो कंडेंस हो रहा है एक पॉइंट पे आके, और जब वो कंडेंस हो जा रहा है तो उसको आप क्या कह रहे हो, दैट इज द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, उस रिमेनिंग पार्ट को आप क्या कह रहे हो, वो एकदम सेंटर में किस में कन्वर्ट हो गया, सन में कन्वर्ट हो गया। तो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, अब एक बात आप समझने की कोशिश करना कि इसमें इस नेबुलर हाइपोथेसिस में जो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, सन का जो फॉर्मेशन हो रहा है एकदम लास्ट में हो रहा है। कब हो रहा है, एकदम लास्ट में हो रहा है। सेकंड चीज, सन कब बना होगा, जब नेबुला से सब क्या बन चुके हैं, सारे प्लैनेट्स बन चुके हैं। तो सारे जो आउटर वाले पार्ट हैं, आउटर वाला जो भी पार्ट है, आउटर जो रिंग्स है वहां पे क्या बन चुके हैं, प्लैनेट बन चुके हैं। अब नेबुला के सेंटर में क्या बना है, सन बना है। इसका मतलब ये रिंग R1, R2, R3, R4 और यहाँ पे क्या बना होगा, सन बना होगा। अच्छा, इसकी स्पीड अगर V1, V2, V3 और V4 और सन की V5 माने, तो अब आप मुझे बता सकते हो कि किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो according to this nebular hypothesis, the speed of sun, the rotating speed of the sun must be highest. The speed of the sun must be highest. पर क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो this is the major limitation of this theory, that it according to this theory the rotating speed of sun should be highest, but ऐसा नहीं है। तो this is the major drawback of this theory. So try to understand what are the limitation, and in this what is happening according to this diagram, nebula is contracting, and what is happening due to this contraction, it start rotating, starting से rotate कर रहा है। due to this rotating speed क्या हो रही है, स्पीड धीमे धीमे इंक्रीज होती जा रही है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और स्पीड के बाद क्या हो रहा है, जो रिंग्स हैं वो डिटैच होना शुरू हो गए, जिसने क्या बना लिया, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन उन्होंने कर लिया है। लिमिटेशन, again he did not explain the source of origin of nebula। लास्ट थ्योरी में किसका सोर्स हमें नहीं पता लगा था, प्रीमॉर्डियल मैटर का सोर्स हमें नहीं पता था। और इस थ्योरी में प्रीमॉर्डियल मैटर तो है ही नहीं, इसमें किसका नहीं पता है हमें सोर्स, नेबुला। कि नेबुला आया कहाँ से स्टार्टिंग में, इसका सोर्स कौन नहीं बता पाया, लाप्लास इसका सोर्स नहीं बता पाया। सेकंड, इफ द प्लैनेट्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रोटेटिंग नेबुला, then the residual part of nebula, that is sun, should rotate at the highest speed। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर सन सबसे लास्ट में बना है और सबसे सेंटर में है, तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जैसा नहीं है, ड्यू टू डिक्रीज इन साइड, बट इट इज नॉट सो। ठीक है, तो दिस वाज द नेबुलर हाइपोथेसिस। अगेन जैसा हमने देखा था कि हम लोग क्या करते हैं, इस हैंड रिटन नोट्स के बाद आप देख रहे हो क्या मिल रहे हैं आपको, ये शॉर्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं जो आपको क्या करेंगे, रिवीजन में मदद करेंगे। कि नेबुलर हाइपोथेसिस इट वाज गिवन बाय द लाप्लास, व्हाट आर द अजम्पशन। तो यहीं पे अजम्पशन हमने माइंड मैप से बना दिए, और आगे क्या हो रहा है वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। एंड व्हाट आर द लिमिटेशन, इट इज ऑल्सो मेंशन इन दिस नोट्स। तो यू विल फाइंड दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका कोई कॉस्ट अभी नहीं है, आप देख पा रहे हो, ये फ्रीली हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, मैं पिछले 6 सालों से तो पढ़ा रहा हूँ, और प्रिपरेशन फेज में तो ठीक सी कमांड है ज्योग्राफी पे। और 6 साल से पहले जब तैयारी करी तो अप्रॉक्सीमेटली 8-10 साल इस फील्ड में जब हो जाते हैं तो आपको पता लगने लगता है PYQ एनालिसिस, प्री का, मेंस का, बाकी स्टेट पीसीएस का। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ें हम क्या करें, कवर कर लें, ताकि आप ना केवल सिर्फ प्री की तैयारी करें बल्कि मेंस की भी तैयारी हो जाए आपके साथ में। इसीलिए आप देखोगे इस प्लेलिस्ट का नाम भी इसी तरीके से डिसाइड किया गया कि फाउंडेशन है। अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं आता है तब भी आप इसको अगर अटेंड करोगे तो यू विल फाइंड जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपसे लाखों की फीस ले रहे हैं वो भी
इसी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों का मोटो केवल यही है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो आप सब तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट जब मिलेंगे तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी थ्योरी और बताऊंगा, कैमर्लिन और मॉल्टन का प्लेनेटेसिमल जो हाइपोथेसिस है वो आपको बताऊंगा, एंड देन वी विल जंप टू बिग बैंग थ्योरी। इफ यू लाइक दिस सेशन तो प्लीज share this session to all your friends who are preparing for any competitive exam, whether it is UPSC, UPPCS, RPSC, MPPCS, or if someone who is preparing for NET JRF examination, you will find these lectures are also beneficial for those students also. Okay, and do not forget to subscribe this channel and hit the bell icon. We'll meet tomorrow. Till then, take care. Jai Hind, Jai Bharat.